everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are going to continue with the methods of measuring price elasticity of demand. Right. In this method we have already discussed two methods earlier, that was percentage method and the expenditure method. In between, in my previous video I taught you the slope of demand curve or linear demand function for making so many numerical calculation easier. Right, so that all we have done already. Now we are moving to the third method of measuring price elasticity of demand, that is called point method. Before I start with point method, it was the reason that I taught you first the slope of demand curve, because linear demand curve is something which express the change in two variables in a same constant rate. So for this reason you need to understand that first, then now we can easily calculate price elasticity using this linear demand curve, because point method is depending on linear demand curve. So here we'll start with the today video. Before I start, I again say, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe, and also press on bell icon so that you can get time to time notifications. So here we start. Here we have point method, which is also called geometric method. This is also called geometric method, right? एंड ज्योमेट्रिक मेथड सेज हम कहीं ना कहीं एक अलजेब्रिक फंक्शन पर, एक ग्राफिकल फंक्शन पे हम कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी हम ग्राफ के ऊपर कुछ हाईलाइट करके उसके बेसिस पे एक कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसपे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके या उसके सेगमेंट्स के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं. तो So before we start with numerical calculation, let's have some introduction of point method. So here we have some introductory part of point method, which is called related to definition and some theories. So here we have developed by Marshall. It is again developed by Professor Marshall that we have discussed already. Professor Marshall का बहुत बड़ा contribution है पूरी इकोनॉमिक थ्योरी में, पूरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस में. तो इन्होंने ही इस थ्योरी को भी कन्वर्ट किया है, मींस इन्होंने ही ये मेथड दिया है जिसके थ्रू हम एक कर्व पर, हम एक अलजेब्रिक कर्व पे, ज्योमेट्रिक कर्व पे इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे, इट इज मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इज नोन एज point elasticity of demand. So what is actually doing here, what is actually happening here, it is measuring of elasticity. ये elasticity का एक measurement है at a particular point on the demand curve. एक particular point of demand curve पे, देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके एक particular point पर जब हम elasticity measure कर रहे हैं is known as point elasticity of demand. It means मे बी एट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी और ई पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इट इज मेजर्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. वापस एक चीज समझनी है, ये जो इलास्टिसिटी मेजरमेंट है वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे ही पॉसिबल है, लीनियर डिमांड कर्व पे ही पॉसिबल है और किसी पे नहीं होगी. अगर डिमांड कर्व कर्विकल है तो ये दूसरा मेथड इसमें अप्लाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्क मेथड. दैट टू ऑल्सो विल डू आफ्टर दिस मेथड इन माई नेक्स्ट वीडियो. राइट, सो हेयर वी हैव, इट इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और लीनियर डिमांड कर्व. So it is calculated by using this formula, that is ED equals to lower segment of demand curve. It is actually DC I have written, this is demand curve and divided by upper segment of demand curve. Means हम इस पूरी थ्योरी में, इस पूरे मेथड में सिर्फ यही पॉइंट आउट करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसका लोअर सेगमेंट और उसका अपर सेगमेंट के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, जिसके बेसिस पर इलास्टिसिटी मेजर होगी. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में, मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिए हैं. इसके अकॉर्डिंग अब हम सेगमेंट्स को देखेंगे, कौन सा सेगमेंट बड़ा है, छोटा है, जिसके बेसिस पे ये सारे पॉइंट्स आते हैं. जनरली है क्या इसमें, अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, मीन्स अगर मैं बात करूं लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू अपर सेगमेंट, यानी इक्वल्स टू का साइन लग जाता है तो हम कहेंगे ईडी इज इक्वल्स टू 1. राइट, अगर आपका लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, इसका मतलब ग्रेटर का साइन लग गया है तो क्या कहलाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1. इन द सेम वे इफ योर लोअर सेगमेंट इज लेस देन अपर सेगमेंट, सो लेस देन का साइन लगते ही इट विल बी कॉल्ड ईडी लेस देन 1. तो ये तीन तो हमारे पास आ गए. रही बात इन्फिनिटी और जीरो की, तो वो क्या होता है, व्हेन लोअर सेगमेंट इज पॉजिटिव एंड अपर सेगमेंट इज जीरो,
lower segment is positive and upper segment is 0, it means we have what? Infinity. और अगर इसी केस में lower segment is 0 and upper segment is positive, it means it is 0. So it is how we can calculate. यहाँ पे ये infinity में convert हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 में convert हो जाता है. तो इस तरह से हम price elasticity of demand निकालते हैं on a particular point of time. Here you can see when lower upper segment equals, यानी कि mid point आ रहा है ये, और mid point पे lower और upper segment, mid point actually divide the demand curve into two equal parts. राइट, सो अकॉर्डिंगली टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो लेट्स सी ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट. अब हम इसको वन बाय वन मेजर करते हैं, देन यू विल गेट टू नो हाउ इट इज कैलकुलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, ईडी एट पॉइंट ए. हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईडी एट पॉइंट ए. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट पे अगर हम बात करें तो लोअर सेगमेंट क्या है? ए. ए पॉइंट को अगर मैं फोकस कर रही हूं तो ए से ई तक का पॉइंट हमारा बनता है लोअर सेगमेंट, राइट. और इसके बाद में अगर अपर सेगमेंट की बात करूं तो ए से ऊपर कुछ है ही नहीं, मीन्स 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इंफिनिटी. तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है? आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो अप करी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो एंड ऑफ द स्क्रीन में आपको मिल जाएगी द लिंक ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो जिसमें दिया हुआ है ऑलरेडी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. तो जब इंफिनिटी आ रही है मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इंफिनिटी मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ईडी एट पॉइंट बी. यानी अब मैं ईडी कैलकुलेट करने वाली हूं पॉइंट बी पे, विच इज हेयर. मैं इस पॉइंट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस योर लोअर सेगमेंट इज बीई. कितना बन रहा है लोअर सेगमेंट? बीई, राइट. और बीई के कंपैरिजन में अगर मैं अपर सेगमेंट को लूं तो क्या है? ए बी. रिजल्ट क्या आ रहा है? योर लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई टॉट यू हियर, सॉरी नॉट हियर, इट इज when I taught you here, when lower segment is greater than upper segment, it is called ED greater than 1, right? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ED at point C. अब पॉइंट C क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पॉइंट C जो है एक्चुअली मिड पॉइंट है. क्या है? मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट पे अभी मैंने बताया कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल आती है. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट लीनियर डिमांड कर्व को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. So accordingly, if I are going for this C or E, CE is actually A and B का रेशियो. तो अपर से लोअर सेगमेंट हो गया हमारा CE और अपर सेगमेंट हो गया AC, which we can draw as a conclusion both are equal. तो equal to का साइन आती क्या बन गया? ED. यहाँ पे बना ED greater than 1 और यहाँ बना ED equals to 1, right? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, which is ED at point D. अगर मैं पॉइंट D की बात कर रही हूं तो at this point, this is the point, DE is the lower segment. So here we have DE and the upper segment is AD, which we have taken here. Now what happened? Your lower segment is less than the upper segment. It has proof that ED less than 1. Right here. Now reaching to the last point, which is we have here as E. So at ED at point E, we have lower segment as, we have any lower segment? No. So it will be 0. Right? और अगर मैं बात करूं अपर सेगमेंट की, so yes, we have AE and anything divided for 0 become 0. So in that case, ED equals to 0. तो अगर हमें याद है तो हम फिर से रिकॉल कर लें इन चीजों को कि जब ED इंफिनिटी निकलता है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जब ED ग्रेटर देन 1 निकलता है इट इज कॉल्ड ग्रेटर इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड. एंड इन द सेम वे व्हेन वी हैव ED इक्वल्स टू 1 इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. व्हेन वी हैव ED लेस देन 1 इट इज लेस इलास्टिक और inelastic demand curve. And when ED is equals to 0 it is called, what does it call? Yes, perfectly inelastic demand curve. अब ये जो पूरे एक्सप्रेशंस हमने इस तरीके से पढ़े हैं, अगर मैं इनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करूं तो प्रूफ हो सकता है. और लीनियर डिमांड क्या कहता है? कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, राइट? तो दो जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रेट पे बदल रहे हैं. सो लेट्स अज्यूम हियर
इसको मैंने दिया 0 पॉइंट, राइट। दूसरे कलर से लिखते हैं तो हाईलाइट होगा क्लियरली। सपोज अब मैं यहां से a हटा करके इसको मानती हूं 0 वैल्यू, इसको लेती हूं मैं एज अ 2 वैल्यू, इसको लेती हूं मैं एज अ 4 वैल्यू, इसको लेती हूं मैं एज अ 6 वैल्यू, और दिस विल बी एज 8th वैल्यू। यानी कि पॉइंट A पर 0 है, पॉइंट B पर 2 है वैल्यू, पॉइंट C पर 4 है वैल्यू, पॉइंट D पे 6 है एंड पॉइंट E पर 8 वैल्यू है। अब इसको अगर मैं इसी सेगमेंट में पुट करूं, कैलकुलेट करूं, तो क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं सेम? यस वी कैन डू। सो लेट्स गो फॉर द सेम। हाउ विल डू इट? तो चलो इसको न्यूमेरिकली करके देखते हैं। सबसे पहले ईडी एट पॉइंट ए, AE, अगर मैं AE से पूरा नीचे जाऊं तो AE लीनियर डिमांड कर्व का टोटल क्या होगा? इट्स 8, राइट। यानी मैं पूरे फंक्शन को देखूं तो 8 इज द टोटल, क्योंकि आखिरी में क्या है? 8 वैल्यू है, तो टोटल हो गया 8। अब इसके ऊपर का सेगमेंट क्या है? 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इंफिनिटी। इट हैज प्रूव्ड दिस इज perfectly elastic demand curve which is located here. Going to the next point, अब मैं next point की बात करूं, हमें अब ED greater than प्रूफ करना है। According to this, अब लोअर सेगमेंट किया जा रहा है 2 से 8, 2 से 8 का मतलब है 8 माइनस 2, राइट। अगर 2 से 8 पे जा रहा है तो 2 ये हो गया चेंज, ये 2 हो गया चेंज, और ये 2 हो गया चेंज। इसका मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 बिकम 6। तो हमारा लोअर सेगमेंट क्या हो गया? 6, और ये जो चेंज है वो कितना है? 2। यानी अपर सेगमेंट का चेंज कितना है? लीनियर डिमांड कर्व यही है ना, हम मूवमेंट पे चल रहे हैं ना। मे बी आपको यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन आप अगर बनाएंगे इसको स्केल के थ्रू तो ये प्रॉपर बिल्कुल बन के आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 6। अब जो लो अपर सेगमेंट है वो कितना है? 2, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, क्या रिजल्ट आया? 3। इट इज ईडी ग्रेटर देन 1, प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट सी की बात करूं, पॉइंट सी पर 4 है, 4 के नीचे 2 प्लस 2 यानी कि 4, राइट हियर। सो व्हाट वी विल राइट? 4 हो गया आपका लोअर सेगमेंट, और अगर मैं अपर सेगमेंट की बात करूं 4 से ऊपर यानी सी से ऊपर, तो ये भी 2 का चेंज है, ये भी 2 का चेंज है, 2 प्लस 2 बिकम 4, सो दिस विल बी 1, हेंस प्रूफ ईडी इक्वल्स टू 1, राइट। अब चलते हैं पॉइंट डी की तरफ। पॉइंट डी में भी सेम ही चीज है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमने इसको अल्फाबेटिकली सॉल्व करके देख लिया, न्यूमेरिकली कर रहे हैं। तो डी से ई का मूवमेंट कितना चेंज? 2, तो ये 2 का चेंज है, यानी 2 वैल्यू ही एड ऑन हुई है, तो हमने 2 डाल दिया क्योंकि चेंज दिखा है, ठीक है। डी से ई की तरफ जो चेंज है वो 2 है। अब उसके पीछे का सेगमेंट यानी अपर सेगमेंट कितना है? 6 है, तो क्या निकल के आएगा? पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3, राइट। क्या निकल के आएगा? 0.3। तो ये कैसी ईडी आ गई? ईडी लेस देन 1, क्योंकि 0.3 रिजल्ट आ गया, तो ईडी लेस देन 1 हो गई। अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, हेयर एट पॉइंट ई। अब ई यानी 8 लास्ट आ गया, इसके नीचे कोई चेंज नहीं है, 0, राइट। और इसके ऊपर क्या है? पूरा 8 है। अपर सेगमेंट क्या है? पूरा 8 है, तो क्या हो गया? ED equals to 0. So in this way, numerically, we have also proved how point elasticity of demand gives us the 5 degree of elasticity. Perfectly inelastic, perfectly elastic, perfectly elastic, perfectly inelastic, and the major 3 equals to 1 कहाँ होगी? जो मिड पे होगी, और लीनियर डिमांड कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। आई होप आपको इसके सेशन, आज के सेशन में ये पूरा समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, और वी कैन से द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर सेज कांस्टेंट चेंज विच वी हैव शोन बाय यूजिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट का जो भी रिलेशनशिप आ रहा है, इक्वल्स आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, लेस देन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने दिया और न्यूमेरिकली भी दिया। So that's all for today. You just write down the whole, then we'll end up the video. So that's all for today's session. I hope you have understood today's method. Now we'll meet in the next video with the new method which is called ARC method to calculate price elasticity of demand. Till then, bye bye.